Good morning, students. First of all, a very happy new year to all. And now we are going to do our next poem, which is Women in Dutch Painting, written by Eunice de Souza. Women in Dutch Painting, it is basically a collection of poems which was written in 1988 and was published even in that year, 1988, and it was written by Eunice de Souza. Eunice de Souza is a very famous female writer who was born on 1st August 1940 in Pune, Maharashtra, and she died on 29th of July 2017. She was the poet and professor of English literature in the Mumbai University. She studied from there also. She studied also from there, and then she served as a professor there. In her writings, she dealt with the oppression of women, the harassment of women in the modern society. So, through her writings, she dealt with all these themes. And the very much peculiarity of her writing was that she used the tone of sarcasm in her poetic works. Now coming to the poem Women in Dutch Painting, this is a very short poem written about the women who appear in the art by Dutch painters, especially Vermeer. She compares these women to women she knows in the real life. The Dutch people are it is the name given to the people belonging to the country Holland. Holland के जो लोग होते हैं उन लोगों को डच कहा जाता है, उन वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है. तो डच पीपल आर द डच पीपल हैव गॉट मोस्ट फेमस पेंटर्स. जैसे कि इटली के पेंटर्स बहुत फेमस हैं, तो उसी प्रकार डच पेंटर्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं. तो डच पेंटर्स जो हैं वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर औरतों का चित्रण करते हैं, हाउस होल्ड कोर्स को करते हुए, जो घर के कामकाज हैं और इस तरह से डेली जो लाइफ होती है, डेली जो रूटीन व्यवस्था है, वो सब काम करते हुए औरतों का वो अपनी जो पेंटिंग्स है उसके अंदर वो चित्रण करते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर पोएम, हमारी आज की जो कविता है उसके अंदर जो हमारी पोइट है वो ये डिस्कवर करती हैं कि असली में जो रियल लाइफ में उन्होंने वो जो विमेन को देख रही हैं वो कैसी हैं, और जो डच पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स के अंदर औरतों का चित्रण करते हैं वो कैसी हैं. तो और फिर इन दोनों की क्या करती है, तुलना करती है. तो दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस पोएम. इसी के ऊपर ये कविता जो है बेस्ड है, एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. नाउ moving on to the text of the poem, the poet says, "The afternoon sun is on their faces. They are calm, not stupid." So, from the very first two lines itself, it becomes clear that what the poetess wants us to make understand, and what she wants us to believe, that basically what happens is when a woman is doing just household chores, or when she is just a housewife है ना, एंड वो बस घर का काम करती है, तो ये समझा जाता है कि वो बहुत क्या है, जो आम समाज है उसमें ये धारणा होती है कि ये बहुत ही क्या है, मूर्ख है ना. मतलब इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, या शी डज नॉट पोजेस दैट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ना, टू डू वर्क outside. But here from the very first stanza itself, what our poetess says, she says that the afternoon sun is on their faces, means the जिस प्रकार से दोपहर के वक्त, आफ्टरनून का समय होता है, तो दोपहर के वक्त जिस प्रकार से सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है और जिस प्रकार का तेज और रोशनी वो एमिट करता है, उसी प्रकार का तेज क्या है, इनके चेहरे पर है. कहने का मतलब ये बहुत ही ओजस्वी है, तेजस्वी. इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ओजसपूर्ण है, फुल ऑफ लाइट, एंड दे आर काम, नॉट स्टूपिड. काम मीन्स पीसफुल है ना. दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट
themselves into unnecessary arguments or unnecessary fights. They avoid that things, but it does not mean that they are stupid, that they do not have any mind. No, this is not the thing. They choose to be calm, they choose to live in a peaceful situation. वो शांति से रहना चुनती हैं, बेशक इसके कि भाई झगड़ा झंझट करें या जो इस तरह के प्रपंच हैं वो करने की बजाय वो शांति को चुनती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता है कि वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। In the third line, she says, in the continuation of this thing, pregnant, not bovine. Pregnant here means full. Pregnant word जो होता है उसका मतलब क्या होता है? Full, मतलब भरा हुआ. तो they are full of life. Full of what? Full of life, full of energy, full of capacity, full of capability, full of intelligence. ये सारी चीज़ें उनके अंदर समाहित हैं। अगर वो सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स कर रही हैं, इफ़ दे आर जस्ट परफॉर्मिंग द हाउस होल्ड वर्क, इट इज़ द थिंग विच दे हैव चूजन फॉर देमसेल्व्स, है ना। तो इट इज़ ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे डू नॉट पोजेस द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू वर्क आउटसाइड, therefore they are doing the household work. No, this is not the case. The reality is that they have chosen to do household works, they have chosen to live like this. तो ये उनकी चॉइस है, ये उन पे थोपा नहीं गया है। और इसका कतई ये तात्पर्य नहीं निकलता है या ये अर्थ नहीं निकलता है कि उनके पास बाहर काम करने की बुद्धि नहीं है। प्रेग्नेंट मीन्स दे आर फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट बोवाइन। बोवाइन इज़ द वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू काउ, लाइक काउ। जैसे कि here it is used as a symbol. Cow is used as a symbol of peace, symbol of सिंपलनेस, सिंप्लिसिटी का जो सिंबल है, भी बिल्कुल सीधा साधा व्यक्तित्व अगर किसी का हो, जो बिल्कुल या फिर कहीं ना कहीं आज के समय में उसको स्टुपिडिटी से जोड़ा जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि तो बोवाइन है, शी इज़ बोवाइन। मतलब जैसा कह दो उसी प्रकार का बस काम करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि हाँ मतलब इफ़ अ पर्सन सेज यू स्टैंड अप सो शी विल स्टैंड, इफ़ a person says to sit down, so she'll sit down. She will not use her own mind. This is not the case. Here the poetess says what? That they are full of life, full of intelligence, but they are not bovine, they are not that stupid. I know women like that. Now she'll justify that what she has said earlier. Our poetess will justify this. तो वो ये कहती है कि I know women like that, और मैं इस तरह की महिलाओं को जानती हूँ। जैसा भी ऊपर उन्होंने बताया, वो आगे इस लाइन में वो ये बोल रही हैं कि मैं इस तरह की औरतों को जानती हूँ, एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स। सो ये कह रही है कि ऐसी औरतें जो हैं वो सिर्फ पेंटिंग्स में ही नहीं रहती हैं। जैसा कि पेंटर्स चित्रण करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बस वैसे ही हैं, रियल लाइफ में भी मैं इनको जानती हूँ। नाउ शील डिस्क्राइब और गिव सम एग्जाम्पल्स कि किस तरह कि किन किन औरतों को जो ऐसा व्यक्तित्व रखती हैं उनको वो जो पोइटेस है वो जान रही हैं। शी सेज, एन आंट हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। An aunt, she knows what? The first example she is giving of an aunt, that she know a lady who is a middle aged lady, जिसको कि वो aunt बोल रही हैं। An aunt who did not answer her husband back. Answer her husband back means to revert back, पलट के जवाब देना या पलट के रिएक्ट करना, बेसिकली इन द सिनेरियो ऑफ अ फाइट। तो she is saying that she knows a lady who is who belong to middle ages, who is a middle aged woman basically। तो एक आंट है जो कि अपने जो हस्बैंड हैं उनको वो पलट करके जवाब नहीं देती है किसी भी फाइट के दौरान या किसी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उस दौरान, मतलब फाइट बैक नहीं करती हैं। वो इसलिए पलट के जवाब नहीं देती हैं बिकॉज शी वॉज प्लेन, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। प्लेन मीन्स सिंपल, या कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, उसको समझ है ही नहीं, ठीक है।
एक होता है कि आपसे कोई अगर लड़ रहा है तो आप लॉजिकली अपनी बात को उस लड़ाई में रखते हो कि हाँ, आई एम फाइटिंग विथ यू बिकॉज आई थिंक यू हैव डन दिस थिंग रॉन्ग, कि मुझे ये लगता है कि तुमने ये गलत किया है, तो इसलिए मैं उसको बार बार बोल करके और तुमसे उन बातों को रखूँगी। लेकिन ये क्या है, ये उसको जवाब नहीं देती है, ये वापस से पलट करके नहीं बात करती है या उल्टा बोलती है या लड़ाई को आगे बढ़ाने का जैसे काम करती है। और ये इसलिए ऐसा नहीं करती कि भाई ये प्लेन है या इनको मतलब बुद्धि नहीं है कि ये क्या बोलेंगी, ठीक है, तो जो भी सामने वाला बोल रहा है बस ये चुपचाप रह जाती है। नहीं, ये ऐसा क्यों करती है, रियल रीज़न क्या है रिवर्ट बैक नहीं करने का या आंसर मुड़ के नहीं देने का? क्यों? क्योंकि वो पीसफुलनेस को चुनती है। शी वॉन्ट्स पीस ऑफ हर माइंड मोर दैन प्रूविंग हरसेल्फ राइट इन द फाइट। ठीक है, अपने आप को लड़ाई करके और सही साबित करने से ज़्यादा प्रेफरेंस वो किसको देती है? शांति को, अपनी मानसिक शांति को चुनती है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड Anna, the next example she gives is of and Anna who writes poems। और एक और लेडी जिसको कि मैं जानती हूँ पोइटिस कहती है, क्या नाम है उसका? एना नाम है। द लेडी हुज नेम इज़ एना हु राइट्स पोएम्स, जो कि क्या करती है? कविताएं लिखती है, वो एक पोइटिस है। एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन्स विल स्प्राउट इन द किचन। Her voice is oatmeal and honey. Now, the lady whom our poet is giving of an example, her name is Anna and she is a poetess। वो क्या है? कवियत्री है और वो कविताएं लिखती है और वो ये उम्मीद करती है, she hopes that her avocado stones, avocado is a fruit, ठीक है, जिस तरह से मैंगो होता है उसी तरह से एक फ्रूट है एवोकाडो। जिस तरह से मैंगो के अंदर से बीज निकलता है ना, तो उसी तरह से एवोकाडो के अंदर से भी क्या है? एक सीड निकलता है, उसका बीज निकलता है, जिसको कि हटा दिया जाता है और बाकी के फल को यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं। तो वो ये जो एना है वो पोइट्री लिखती है और वो ये साथ ही में उम्मीद करती है कि जो एवोकाडो स्टोन्स है, स्टोन्स मतलब ऑब्वियसली दैट सीड, वो जो बीज है उसका, जो उसने किचन में रखे हैं, कि वो स्प्राउट हो जाएंगे। स्प्राउट होने का मतलब उसके अंदर से नन्ही कलियां निकलेंगी और फिर एक एवोकाडो का पौधा लग जाएगा। ठीक है, तो वो ये उम्मीद करती है। हर वॉइस इज़ ओटमील एंड हनी। हियर इट मीन्स दैट शी is fond of food. She writes poems. Obviously, when she is writing poem, so she is an intellectual person. Poetry is the toughest thing to be written, to be composed. Poetry लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वो अगर पोइट्री लिखती है तो इसका मतलब शी इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, उसको सारी दुनिया की नॉलेज है ऑब्वियसली, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, कैपेबिलिटी है, तभी तो वो पोइट्री कर सकती है। तो वो एक तरफ तो पोइट्री लिखती है और दूसरी तरफ क्या है? शी इज़ अ फूड लवर, जैसा कि पोइटिस, जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि वो एवोकाडोज़ को किचन में रखती है और ये उम्मीद करती है कि भाई इसमें से स्प्राउट्स निकल जाएंगे ताकि वो प्लांट बने और फिर उसमें से और एवोकाडोज़ उगे और फिर वो कंज्यूम करें। और हर वॉइस इज़ ओटमील एंड हनी, कि जिस तरह से ओटमील एंड हनी ये एक दिस इज़ अ वेरी फेमस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड विच इज़ ईटन आउटसाइड, अ हेल्दी वन ऑल्सो, कि जिस तरह और उस ये शहद की तरह से और ये जो ओटमील है उस तरह से सिंपल और मधुर। तो उसकी आवाज़ भी कैसी है? बिल्कुल, ओटमील इज़ अ वेरी सिंपल फूड, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉरिज की तरह से फूड होता है, ये पॉरिज जैसे दलिया के प्रकार का, तो बहुत ही सिंपल फूड होता है और उसी तरह से सिंपल और शहद की तरह मीठा। तो उसकी जो आवाज़ भी है, हर वॉइस इज़ ऑल्सो लाइक दैट, कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मीठी आवाज़ है। तो हियर बाई जक्स्टापोजिंग टू वेरी अपोजिट सिचुएशंस, कि एक तरफ तो क्या है वो पोइट्री कर रही है और दूसरी तरफ क्या है? शी इज़ अ फूड लवर। तो here the poetess is making us understand that a women personality is full of multiple traits, कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर के क्या है? एक वुमेन की, एक औरत की पर्सनालिटी बनती है। तो अगर वो घर में रह रही है, घर के कामकाज अगर वो कर रही है, एज इज़ बीइंग प्रेजेंटेड इन द डच पेंटर्स, इन द पेंटिंग्स ऑफ दूस पेंटर्स, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी।
कि वो उन्होंने अपनी खुद की चॉइस से चुना है घर में रहना और घर के काम काज करना, और अगर वो चाहे तो वो बाहर भी जा सकती हैं, बाहर का काम भी बहुत बखूबी कर सकती हैं, बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनके पास में है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थीम बिहाइंड दिस पोएम।